हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू बच्चों। लास्ट क्लास में हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट किया था, क्वेश्चन स्टार्ट किया, दैट इज फ्री कंसेंट, जिसके बारे में आप लोग पहले से भी जानते थे। एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 10 में आप लोगों ने पढ़ा था। एंड येस्टरडे मैंने आपको फिर से फ्री कंसेंट के बारे में बताया एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्री कंसेंट और व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मीटिंग्स ऑफ माइंड और व्हाट आर द फैक्टर्स वेयर द प्रेजेंस ऑफ व्हिच implies that the parties and their minds, their identity of minds are not free, are not matched, their consensus are not ad idem, इन सब के बारे में बताता है। हमने उसमें 2 पॉइंट्स पढ़े थे, 2 फैक्टर, हमारे 5 फैक्टर है, कोएर्सियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, एंड जिसके अंदर से हमने फर्स्ट 2 पॉइंट्स को कंप्लीट कर दिया था। आज स्टार्ट करने से पहले I would like to explain the last 2 points along with the introduction part again बच्चों, so that आज का पढ़ने के लिए आपको आसान और भी अच्छे से समझ में आएगा, रिवाइज भी हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था, मैंने आप लोगों को पीडीएफ भेज दिया है, होप आप लोगों ने पीडीएफ देखा होगा। बच्चों, इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है, फ्री कंसेंट इज वन ऑफ द मेजर एसेंशियल एलिमेंट्स या मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फ्री कंसेंट जैसे बच्चों ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लीगल रिलेशनशिप, कंसिडरेशन, कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज, लॉफुल ऑब्जेक्ट, जिस तरह से हमारे पास 10 एलिमेंट्स थे अंडर सेक्शन 10 के अंदर। एंड वन ऑफ द अनदर मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है बच्चों फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का इंट्रोडक्शन पार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ के होगा, सारे पॉइंट्स का जैसे होता है। बच्चों, फ्री कंसेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट which states that the parties to a contract are ad idem. It means the parties to a contract must agree upon the same thing in the same sense at the same time, and in order to make a valid contract their consent must be real and free. It should not be affected by any misrepresentation, any mistake, एंड हम ऐसा बोल नहीं सकते कि उनका कंसेंट फ्री नहीं है। एंड फाइनली सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 states that all agreements are contracts only when the parties minds or only when their minds or only when they give their consent freely or when the consent of the party बच्चों is free, then we can say an agreement a valid contract. This is all about the introduction part में मैंने बोला था। then meaning में बहुत अच्छा सा meaning बताया था बच्चों। the term free consent refers to identity of mind. the term free consent refers to identity of mind of the parties, minds of the parties entering into a contract. It means 2 or more persons are set to free consent when they agree upon the same thing at the same time in the same sense. And without such free consent, a contract cannot be formed. In fact, English law क्या बोलता है बच्चों? According to English law मैंने आपको बताया था, meetings of 2 minds. Meetings of 2 minds is known as consensus ad idem, and it is the base of the formation of the contract, and a contract can be prevented if there is no consensus ad idem, if there is no identity of mind, if there is no free consent. A contract is completely bachcho voidable. It cannot be enforceable by law. Agreement cannot be enforceable by law. Clear? बच्चों, in order to make a valid contract, and बोल सकते हैं in order to make an agreement enforceable by law, the parties who are entering into it must agree about the same thing in the same sense at the same time. They must fully aware about the subject matters, terms and conditions of the contract. They should not enter into contract by mistake, under any misunderstanding, or under any force, under any pressure. They can't
enter into a contract if they do so by mistake, without the fully consent, without their full information, or by use of the pressure or any other factor where, or the factor that indicates they are not voluntarily agreed to enter into a contract. So in that case, it implies that there is no free consent, there is no identity of mind, there is an absence of identity of mind, and finally no consensus, hence no contract can be formed. क्लियर बच्चों? नाउ हमने पढ़ा था, उसके बाद उसके बारे में डिस्कशन करेंगे दैट व्हाट आर द फैक्टर्स. फर्स्ट फैक्टर इज कोएर्सियन, एंड यू नो वेरी वेल बच्चों, कोएर्सियन वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. ए पर्सन व्हेन एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट फोर्सिबली, दैट इज नोन एज कोएर्सियन. इट इज नॉट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट as or because here the consent of the parties is obtained under threatening हुआ या by use of the pressure. So where or when the consent of the parties is obtained by use of pressure or by use of threatening, that is known as coercion. It means force a person to commit to do an act which is forbidden by Indian Penal Code, which is not accepted by law, which is against the law, which is against the society. To force a person to enter into a contract to do an act which is forbidden by law forcibly is known as coercion, and it is voidable on the part of the injured party. उसने void नहीं किया है पर भी बच्चों ये void होने वाला है, and it is known as voidable. And coercion is said to exist, मैंने आपको बताया था, coercion is said to exist when committing or threatening a person to do an act which is prohibited by the Indian Penal Code, unlawful detaining or retaining the property of a person, and बच्चों threat to commit suicide मैंने आपको बताया था, and finally बोला था threat or threat to file a wrong case, a false case against a person to for any benefit, उनसे पैसा लेना हो, कुछ भी लेना हो. So threat to commit suicide हो, threat to file a wrong case against a person, unlawful detaining someone's property. और बच्चों पहला पॉइंट था committing or forcing a person to do an act which is forbidden by law. These are the points comes under बच्चों coercion. होप सभी को बच्चों समझ में आया होगा, किसी का डाउट भी नहीं होगा. सो बच्चों, अनड्यू इन्फ्लुएंस रेफर्स टू अनफेयर यूज ऑफ वंस पावर, वंस सुपीरियर्स पावर ओवर द वीकर पार्टीज. एंड मैंने आपको बताया भी था, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टीज, वेयर वन सुपीरियर पार्टी बिकॉज ऑफ हिज ऑथोरिटी ही और शी हैज making the wrong use, unfair use of his power over the weaker party to force him to do any act, but not force him by using his power, by misusing his power. वो इस तरह से उसको बना दे रही है, उसको वो करने पे मजबूर हो जा रहा है, बट वो समझ नहीं पा रहा कि यहाँ पे वो उसको फोर्स कर रहा है कि क्या कर रहा है, पर वो उसके अंदर रहते हुए उस काम को करने के लिए मजबूर हो जा रहा है. दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस रेफर्स टू अनफेयर यूज ऑफ वंस पावर, वन सुपीरियर पावर टू ऑब्टेनिंग द कंसेंट टू मतलब फोर्स यू टू डू एन एक्ट. फोर्स तो नहीं बोलेंगे बट आपको करने के लिए राजी करवा देंगे, जस्ट बिकॉज आई हैव सर्टन स्पेशल power over you, special. I will take the advantages of my position, my superiority, and that may be a superiority of मतलब जैसे relationship of a boss and employee, a father and son, या step parent step सन बच्चों, या किसी टीचर स्टूडेंट का हो, या कोई डॉक्टर पेशेंट के साथ कर सकता है, तो उसकी बीमारी का फ़ायदा उठा के वो उसके साथ बहुत कुछ काम करवा सकता है. जहाँ पे वो राजी ना होगा वहाँ पे वो राजी भी हो सकता है. So undue influence is said to exist only when there is a special kind of relationship exist between them. And बच्चों undue influence can exercise when, बताया था आपको 3-4 पॉइंट शायद, when someone has real authority over others,
and that authority may be fiduciary authority बच्चों, like the authority of a king over his people of his palace, or the authority of a step parents over his stepson बच्चों, or whenever we enter into a contract with a person who is mentally unable to take decision or is under age, immature, तो उसके ऊपर हम अपने बड़े होने का, अपने पेरेंट्स होने का, अपने बॉस होने का, या किसी भी एक प्रकार का हमारा उसका रिलेशंस है जिसके अंदर वो हमारे अंदर काम करने के लिए मजबूर है, हमारे ऑर्डर को मानने के मजबूर है, तो उस मजबूरी का फ़ायदा लेके हम उससे गलत काम भी करवा सकते हैं। पर यहाँ पे दोषी रियली बच्चों हम होंगे, एंड अगर वो एग्रीमेंट में राजी भी हो जाता है तो इन फ्यूचर वो वहाँ से निकल सकता है, क्योंकि वहाँ उसका कंसेंट फ्री नहीं था। So this is the another part where the consent of the party is not free, and the point is undue influence. Now बच्चों, coercion is the when a person entered into a contract forcibly or under a threat, that is known as coercion. And whenever a person is ready to do a work or give his consent due to the unfair use of the superior party over his, due to the unfair use of power of superior party over him, उसके ऊपर सुपीरियर पार्टी का अधिकार था एंड उसके पास कुछ रिलेशनशिप था जिसकी वजह से उसने अपनी पावर का मिसयूटिलाइज आपके साथ करने की कोशिश की, इसकी वजह से आपने कंसेंट दे दिया, पर आप फ्रीली कंसेंट देने के लिए बिल्कुल राजी नहीं हो, तो यहाँ पे बोला जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस। ओके बच्चों, मैंने एग्जाम्पल भी आपको शायद दिया था। अनड्यू इन्फ्लुएंस में अगर एक पेरेंट्स अपने बच्चे को कुछ पैसा देते हैं, जो उसको पढ़ा लिखाते हैं, बड़े होकर बोलेंगे कि हमने तुमको इतना तुम्हारे लिए खर्च किया था, तुम्हारे माँ बाप जब नहीं थे, स्टेप पेरेंट्स जो होंगे तो आपको देना पड़ेगा, उसके बदले उससे ले सकते हैं। तो बच्चों ये एक तरह से अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा। अगर बेटा मजबूरन हाँ भी बोल देता है तो वो किसी भी तरह से ऑब्लाइज नहीं है पेरेंट्स को देने के लिए। नाउ बच्चों, द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट फ्रॉड बच्चों सभी बचपन से सुने हो। आज मैं आपको फ्रॉड का रियल मीनिंग बताऊंगा। देखो, जैसे हम लोग मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें पढ़े, प्लानिंग का रियल मीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, हर एक टर्म का मीनिंग पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे हर एक टर्म का मीनिंग पढ़ रहे हैं विद एग्जाम्पल्स, विद पॉइंट्स। वैसे बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रॉड? बच्चों, द टर्म फ्रॉड मीन्स इंटेंशनल और विलफुली मिसस्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। बच्चों, द टर्म फ्रॉड रेफर्स टू इंटेंशनली, जानबूझ के, नोइंगली, विलफुली, बदमाशी करके, गलत सोच रख के, जानबूझ के मिस स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, मतलब जो सही है सही ना दिखा के गलत किसी को दिखाना। बच्चों, यहाँ पे फ्रॉड का मीनिंग इतना ही है, पर हमें उसको समझाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज लिखनी पड़ी दूसरे पॉइंट से। पहले मेरी बात को सुनो। द टर्म फ्रॉड रेफर्स टू इंटेंशनली, नोइंगली, विलफुली मिसस्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स विच इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू, रिलायबल, बिल्कुल सही नहीं, जानबूझ के छुपाया, जानबूझ के गलत दिया। बट व्हेन बच्चों इट इज डन इनोसेंटली, अगर हम गलती से किसी को गलत चीज दिखा देते हैं, गलती से, इनोसेंटली, नहीं कि जानबूझ के नहीं, इफ इट इज डन इनोसेंटली, अगर मुझसे गलती से मैंने आपको गलत पढ़ा दिया, गलत नोट्स दे दिया, गलत इंफॉर्मेशन दे दी, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, मेरा कोई भी लक्ष्य नहीं था आपको हार्म करना, आपको हैरान करना, आपका लॉस कर देना। इफ इट इज डन इनोसेंटली विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसीविंग यू, डिसीविंग मतलब हार्मिंग यू, इंज्यूरिंग यू, आपको इंज्योर नहीं करना चाहता, आपको हार्म नहीं करना चाहता, आपकी प्रॉपर्टी को हार्म करना नहीं चाहता, मैंने कर दिया, हाँ मानता हूँ मैंने कर दिया, पर मैंने गलती से बाय मिस्टेक कर दिया, मैंने इनोसेंटली गलत चीज़ आपको दिखा दी, मुझे ये दिखाना था, मैंने गलती से आपको वो रिपोर्ट दिखा दी। सो इफ इट इज डन बच्चों इनोसेंटली विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव ऑफ हार्मिंग द प्रॉपर्टी और द सेकेंड पार्टी या थर्ड पार्टी को हार्म करना या उसकी प्रॉपर्टी को हार्म करना हमारा एम नहीं होगा, देन इट इज नोन एज बच्चों मिस रिप्रेजेंटेशन, तब इसको बोला जाएगा मिस रिप्रेजेंटेशन। बट इफ इट इज डन नोइंगली, इंटेंशनली, विलफुली, टू इंज्योर the other party, to harm the other party, to deceive the property of other party, harm the property of other party, then it is amounts to fraud and it is punishable act, it is a punishable offense, ये एक अपराध है बच्चों।
सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, देखो फ्रॉड के साथ 2-3 लाइन हमने ऐड कर दी, हमें मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में लिख दिया. सो द टर्म फ्रॉड रेफर्स टू intentionally, knowingly, willfully misstatement of material facts, but when it is done innocently, without any objective of deceiving the parties and his property or his property, हम ना तुम्हें हार्म करना चाहते हैं ना तुम्हारी प्रॉपर्टी को हार्म करना चाहते हैं, then it is known as fraud, then it is known as misrepresentation. अगर मेरा ऑब्जेक्ट तुम्हें हार्म करना नहीं गलती से हो गया, इट इज नोन एज मिसरिप्रेजेंटेशन. बट इफ इट इज डन इफ इट इज डन इंटेंशनली, विलफुली, नोइंगली, विद द पर्पज ऑफ डिसीविंग द पार्टी, विद द पर्पज ऑफ डिसीविंग हिज प्रॉपर्टी, इंजरिंग हिज प्रॉपर्टी, अदर पार्टी को इंज्योर करना, उसकी प्रॉपर्टी को इंज्योर करना, इट अमाउंट्स टू फ्रॉड. एंड अकॉर्डिंग टू बच्चों सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, याद रखना फ्रॉड में क्या क्या एक्टिविटीज होती है. एंड रिमेंबर बच्चों, फ्रॉड इज ए पनिशेबल ऑफेंस, यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगा. जितना बड़ा फ्रॉड होगा उतना बड़ा पनिशमेंट होगा. घोटाला आप 1 लाख का करोगे, 1000 का करोगे, 1 लाख करोड़ का करोगे, 1000 करोड़ का करोगे, जितना बड़ा फ्रॉड होगा उसी के हिसाब से आपको पनिशमेंट मिलेगा. एक इंसान का जितना इंजरी होगा उसी के हिसाब से आपको पनिशमेंट मिलेगा. ओके बच्चों, सो नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 में बच्चों फ्रॉड का मतलब क्या क्या होता है. ए फॉल्स मिसस्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, झूठ गलत इंफॉर्मेशन देना, नोइंगली. ओके बच्चों, इंटेंशनली. सेकेंड पॉइंट, हमने गलत चीज दी. पहला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 आपके फ्रॉड के अंदर क्या क्या पॉइंट्स या एलिमेंट्स आते हैं. फर्स्ट पॉइंट बच्चों, फॉल्स मिसस्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, नोइंगली, इंटेंशनली. सेकेंड बच्चों, कॉन्सीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, या सच बात को ना बता के छुपा देना. पहली बात तो मैंने आपको रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी, दैट इज नोन एज फ्रॉड. सेकेंड बात मैंने आपको बताया ही नहीं जानबूझ के, दैट इज ऑल्सो फ्रॉड. समझ में आया कि नहीं बच्चों. अगर मैंने आपको गलत इंफॉर्मेशन दी, मिस स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, नोइंगली, फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, नोइंगली, दैट इज फ्रॉड. ओके, कंसीलमेंट बच्चा, CONCEALMENT, कंसीलमेंट मतलब आपसे सच को छुपाना, आपसे सही बात को छुपाना जिसकी वजह से आपका लॉस हुआ, दैट इज ऑल्सो फ्रॉड. ए प्रॉमिस, पहले 2 पॉइंट आप समझ में आया. फर्स्ट पॉइंट, इंटेंशनली मिस स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट या फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, गलत चीज आपको दिखाना जानबूझ के. सेकेंड पॉइंट, आपको नहीं बताना कोई चीज, कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, ट्रू चीज को छुपा देना. थर्ड पॉइंट बच्चों, ए प्रॉमिस मेड विदाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट. मैं किसी को प्रॉमिस करूंगा, भैया मैं आपके लिए करूंगा, पर मेरा ऑब्जेक्ट होगा उसको नहीं करूंगा. मैं आपसे एक वादा करूंगा पर मेरा एम होगा उस वादा को पूरा ना करना, जानबूझ के आपको हैरान करना, आपसे पैसा लिया आपको ना पढ़ाना, आपको ट्रीटमेंट ना देना, आपको सर्विस ना देना, आपको सामान टाइमली ना भेजना, आपका नुकसान करवाना. सो बच्चों, जानबूझ के मैंने क्या किया, एक प्रॉमिस किया आपको, जिससे आपने समझ लिया कि हाँ ये प्रॉमिस कर रहा है तो वादा पूरा करेगा, अपना प्रॉमिस, अपना परफॉर्मेंस पूरा करेगा, पर मेरा ऑब्जेक्ट मन में होगा बस तुमसे पैसा ले लेना और बाद में तुम्हें सर्विस ना देना. सो बच्चों, प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, प्रॉमिस दिया पर मेरा इंटेंशन नहीं है बिल्कुल उसको पूरा करने का, दैट इज ऑल्सो बच्चों फ्रॉड. एनी एक्ट नोइंगली विद द ऑब्जेक्ट ऑफ डिसीविंग द पार्टीज और इज प्रॉपर्टी, कोई भी एक्ट जो जानबूझ के हम किसी पार्टी को और उसकी प्रॉपर्टी को हार्म करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो बच्चों फ्रॉड. समझ में आया कि नहीं. सो बच्चों, ये दीज आर द पॉइंट्स कम्स अंडर फ्रॉड. एंड इन केस ऑफ फ्रॉड बच्चों याद रखना, द एग्रीव्ड पार्टी, द इंज्योर्ड पार्टी, एग्रीव्ड बच्चों AGGRIEVED, एग्रीव्ड मतलब बच्चों जिसका नुकसान हुआ है उसके पास अधिकार है, उसके साथ लॉ खड़ा हुआ है एंड उसको अपना पूरा लॉस मिलेगा. इन केस ऑफ फ्रॉड, द एग्रीव्ड पार्टी, द इंज्योर्ड पार्टी कैन रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट, पहले तो अपने आप को निकाल लेगा कॉन्ट्रैक्ट से, मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा, आप फ्रॉड हैं. उसके साथ साथ उसका अधिकार है, उसका जो नुकसान हुआ है, ही और शी कैन क्लेम
अगेंस्ट यू फॉर दैट डैमेजेस, एंड आपको उसको देना पड़ेगा और पनिशमेंट भी आपको मिलेगा। नुकसान भी पूरा करोगे, पनिशमेंट भी मिलेगा, वो आपके लिए काम भी नहीं करेगा। सो दिस इज फ्रॉड बच्चों। सो अगर किसी हमें मालूम पड़ता है हम ऐसे इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें जहाँ पे वो इंसान हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हमसे छुपा रहा है, या हमें प्रॉमिस कर रहा है, प्रॉमिस को पूरा नहीं करेगा, या हमें हार्म करना चाहता है, उसके साथ रह के हमें हार्म होगा, तो वैसी जगह पे मतलब उसने हमें सही चीज़ें नहीं बता के झूठ मूठ में हमें कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया है, तो उस जगह पे ड्यू टू दिस पॉइंट दिस टर्म बच्चों फ्रॉड, हम उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल जाएंगे। क्लियर बच्चों? नाउ बच्चों नेक्स्ट पॉइंट मिस रिप्रेजेंटेशन। और याद रखना फ्रॉड पनिशेबल है, यहाँ पे एग्रीड पार्टी को, इंजर्ड पार्टी को उसका नुकसान मिलेगा, एंड जो फ्रॉड जिसने किया वो उसको पनिशमेंट मिलेगा, एंड हम आपके साथ दोबारा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करेंगे, ये भी होगा। नाउ बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हुआ मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन इज गिवन इन सेक्शन 13। सेक्शन 13 में बच्चों मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में लिखा है। अब इसका मीनिंग तो शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बच्चों। सो इट रेफर्स टू इनोसेंटली मिसस्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट विच इज नॉट ट्रू बट रिगार्डेड एज ट्रू। मैंने सोच लिया ये ट्रू है एंड गलती से आपको दे दिया, दैट इज नोन एज मिस रिप्रेजेंटेशन। हाँ मानता हूं इससे आपका लॉस हुआ, आपको आपकी प्रॉपर्टी को लॉस हुआ, ये अलग बात है, बट मेरा इंटेंशन नहीं था, मुझे मालूम नहीं था, गलती से मैंने आपको गलत चीज दे दी। सो इट रेफर्स टू इनोसेंटली मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स विच इज रिगार्डेड एज ट्रू बट दैट इज नॉट एक्चुअली ट्रू। जो रियली ट्रू नहीं था पर मैंने उसको सही सोच के आपको दिखा दिया एंड कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ बना लिया। सो इट इज रिगार्डेड एज बच्चों फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट। फॉल्स बट मेड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, विदाउट एनी इंटेंशन of deceiving you or your property, without any object or intention of deceiving the other party, और इस प्रॉपर्टी को हार्म करना मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था। So an innocently misstatement of material facts which is regarded as true, हम सोच ले रहे हैं, हम which is मतलब which we assume as true is regarded as misrepresentation। but यहाँ एक लाइन ऐड कर दें, if it is done knowingly, if it is done knowingly it amounts to fraud and it is punishable। यहाँ पे भी आपको पनिशमेंट मिलेगी मिसरिप्रेजेंटेशन पर। पनिशमेंट वो अपराधी के लिए नहीं, आपने अगर किसी का लॉस कर दिया है तो शायद आपको उस लॉस को पूरा करना पड़ेगा, पर you will not declare, you are not डीम्ड एज, यू आर नॉट, तुमको आपको नहीं बोला जा सकता, आपको नहीं सोचा जा सकता, आपको नहीं डिक्लेयर किया जाएगा एज ए बच्चों क्रिमिनल, या आप फ्रॉड हो, आपने ऐसा अपराध किया, ऐसा नहीं, पर आपने गलती की है। जैसे इंसान एक्सीडेंट कर देता है तो वो अपराधी नहीं होता। हाँ ड्रिंक एंड ड्राइव करेगा, एक्सीडेंट करता है तो अपराधी होता है। जान के गाड़ी की स्पीड को बढ़ा किसी एक्सीडेंट करेगा तो अपराधी होता है, पर गलती से अगर हो गया तो वो अपराधी नहीं होता, पर उसने गलत काम किया होता है। सो इफ इट इज डन इंटेंशनली नोइंगली विद द ऑब्जेक्ट ऑफ डिसीविंग द पार्टीज और इज प्रॉपर्टी, देन इट इज नोन एज फ्रॉड एंड फ्रॉड इज ए पनिशेबल एक्ट। सो इन केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन बच्चों, द एग्रीड पार्टी ऑल्सो रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमने किसी गलत तो वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट से निकल सकता है एंड ऑल्सो क्लेम फॉर द डैमेजेस। बस ये डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे वो दूसरे वाले पार्टी से डैमेजेस ले सकता है, कॉम्पेंसेशन ले सकता है, अपना पूरा हर्जाना ले सकता है, पर यहाँ पे जिसने ऐसा किया है वो एक क्रिमिनल नहीं है, एक फ्रॉड जो फ्रॉड करते हैं हम वैसा उनको चीटर या हम उनको गलत इंसान नहीं बोल सकते। ओके बच्चों, नाउ द मिस रिप्रेजेंटेशन में बच्चों क्या क्या होता है? मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट इन विदाउट एनी इंटेंशन बच्चों एंड टेकन इट एज ट्रू, इसको सोच लेते हैं ट्रू, तो वो हुआ मिस स्टेटमेंट। एड्रेस बाय वन पार्टी टू अदर पार्टी, मैंने आपको एक एड्रेस बोला पर आपने क्या किया, उस एड्रेस को गलत सुना, या मैंने आपको आंसर देना था, मैंने राम को आंसर दे दिया, मुझे मालूम नहीं पड़ा कि किसको आंसर देना। जैसे मैं कल आपको पढ़ाते वक्त लिंक भेजना चाहता था तो गलती से मैंने दूसरे बैच में भेज के मैंने बोल दिया, तो बच्चों वो गलती से भी हो जाता है
एंड उनको और एक भेज दिया था, तो वहाँ पे भी गलत हो सकता है, तो गलती से। ओके बच्चों, इनएक्यूरेट फैक्ट्स बट बिलीव टू बी ट्रू, गलत फैक्ट है बट उसको बिलीव कर लेना ट्रू, गलत चीज़ को बिलीव कर लेना ट्रू, ये भी मिस रिप्रेजेंटेशन है। इंड्यूस्ड ए पार्टी टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, किसी पार्टी को बोलना भैया इसमें एंटर करो, ये अच्छा, पर वो बहुत गलत होगा, वहाँ जाने से प्रॉब्लम होगी, पर हमें नहीं मालूम होगा। मैं खुद तो वहाँ चला गया, मुझे नहीं मालूम, अभी तक लॉस है, मैंने अपने दोस्तों को दूसरे लोगों को भी मैंने वहाँ जाने के लिए बोला, एंड फाइनली कुछ दिनों के बाद मेरा सभी का नुकसान हुआ, तो सभी तो मुझे दोस्त देंगे ही देंगे। पर बच्चों यहाँ पे मुझे भी नहीं मालूम था कि ऐसे काम करने से सभी को लॉस होगा, तो इसीलिए मैंने सभी को फोर्स किया था करने के लिए, पर फाइनली लॉस हुआ। तो इसमें मैं आपका डैमेजेस पूरा करूंगा, आई एम लायबल फॉर दैट, बट मैं अपराधी नहीं हूँ। क्लियर बच्चों, तो ये ऑफेंस में नहीं जाएगा, बस यहाँ पे आपको डैमेजेस देना पड़ेगा। So this is known as misrepresentation if it is done innocently, misrepresentation without any objective of deceiving the party, harming the party, injuring the party or its property. Okay, that is known as misrepresentation. नाउ बच्चों द लास्ट पॉइंट, हमने कोएर्शन पढ़ा, अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ा, फ्रॉड पढ़ा, मिस रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, समझ में आया बच्चों। नाउ द लास्ट पॉइंट बच्चों, मिस्टेक। व्हाट इज मिस्टेक बच्चों? एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम, बट when the parties to a contract enter into a contract by mutual mistake or without understanding the terms and conditions, they accept the contract. उन्होंने समझा नहीं, जैसे मैंने बोला था, आई हैव 2 cars, one is Maruti Swift, another one is Hyundai i20. I decided to sell Maruti Swift, but you previously मैं Hyundai बेचना चाहता था, पर मेरा मूड चेंज हो गया Maruti Swift, तो मैंने आपको Maruti Swift बोला, पर आपने मेरी बात को नहीं सुना। आपने सोचा कि सर तो पहले यही बोल रहे थे, तो सर शायद वही वाले Hyundai बेचना चाहते हैं, तो आपने एग्रीमेंट में राजीनामा दे दिया, पर बाद में आपको मालूम पड़ा कि एक्चुअली सर Maruti Swift बोले थे, तो आप उससे निकल जाओगे, आप उसको नहीं लोगे। सो दैट मीन्स द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम, एग्री नहीं है। दे एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर एनी म्यूचुअल मिस्टेक, और गलती से बच्चों वो घुस गई हैं। दे आर नॉट फुली अवेयर अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उनको पूरी तरह से नहीं मालूम। दैट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिटवीन द पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल मिस्टेक, फ्रॉम दोनों से हो या किसी एक जने से हो, गलती हुई है। So in that case, the consent is not free, the meetings of minds is not completely made, the identity of mind is not real, is not free, hence no consensus, hence no free consent, hence there is no contract. So a contract where the parties enter into it by mistake, without fully aware about the terms and condition, or they mistaken the terms and condition. So due to such lack of absence of free consent, that contract is also बच्चों said to be, is not said to be a valid contract. उस प्रकार के contract को भी valid contract नहीं बोला जाएगा। एंड नो बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिस्टेक, तो मैंने आपको तो नहीं बताया, जैसे हमने आपको कोएर्शन का मतलब बताया, व्हेन ए पर्सन एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट फोर्सिबली, दैट इज नोन एज कोएर्शन। एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस रेफर्स टू अनफेयर यूज ऑफ वंस पावर ओवर द वीकर पार्टी, अनड्यू इन्फ्लुएंस। फ्रॉड रेफर्स टू इंटेंशनली, नोइंगली, विलफुली misstatement of material facts, misstatement गलत दिखाना, and misrepresentation refers to innocently misrepresentation of material fact बच्चों। उसी तरह से mistake मतलब क्या है? The term mistake refers to erroneous belief बच्चों। erroneous belief मतलब मैं सोच रहा हूँ ये सही है पर ये गलत है, that is called mistake। जैसे एग्जाम में आप मिस्टेक कर देते हो, प्रॉब्लम को कॉन्फिडेंटली करते करते। आपको कभी कभी देखो बचपन में ऐसा होता है, जिससे हम एक टेबल करें 2 into 3 बच्चों 6, हम सभी को मालूम है, बोला 2 into 3 8, गलती से वो कॉन्फिडेंट लिख देता है, वो एक्चुअली बच्चों कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में 6 होता है, पर वो 2 into 3 ना पढ़ के 2 into 4 पढ़ रहा होता है, एंड 8 लिख के आ जाता है।
सो बच्चों हम उसको सोच रहे कि हमने गलती नहीं की, एररनियस बिलीफ, हमने सोचा पूरा सही किया पर हमने गलत कर दिया है। सो मिस्टेक रेफर्स टू एररनियस बिलीफ रिगार्डिंग एनी ऑब्जेक्ट हो, एनी सिचुएशंस हो, जिसको हम ट्रू सोच लेते हैं, सही सोच लेते हैं पर वो गलत होता है। एंड इन केस पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट enters by mistake, that is not a valid contract, because here the consent is not free, here a complete absence of their free consent, hence no contract can be fought. So bachcho, this is all about the factors affecting free consent, under what circumstances, under what cases, what factors are responsible where the consent of the party is not free. Coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake, these are your बच्चों हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स 3 मार्क्स एग्जाम में आएंगे। along with बच्चों MCQ erroneous belief आपके एंट्रांस में आएगा, erroneous belief of something and deemed it to be true, that is mistake बच्चों। misrepresentation of material fact, innocently बच्चों misrepresentation या concealment of material fact, को छुपा लेना पर गलती से छुपा लेना, मालूम नहीं पड़ा ये बताना था मैंने वो बता दिया, अगर गलती से छुपा लिया that is also misrepresentation। but knowingly, willfully, intentionally misstatement, concealment, गलत बताना, किसी को प्रॉमिस करना, पूरा ना करने का वादा, माने अपने मन में ऑब्जेक्ट रखना, पूरा नहीं करना, that is called बच्चों fraud। and unfair use of our powers over weaker party, यहाँ पे जरूर एक जना स्ट्रॉन्ग मतलब सुपरियर होगा और एक जना वीकर होगा। undue influence or forcing a person to commit or to do an act which is not accepted by law, admitted by law, enforceable by law or completely forbidden by law, जिसको लोग एक्सेप्ट नहीं करती बच्चों, that is known as coercion। So these are the points, these are the factors where we can say that the parties' minds are not ad idem, their consent is not free, there is no identity of minds, there is no free consent, there is no consensus ad idem, hence no contract can be formed। Clear? देखो a small term that we discussed in the 6th number point under section 10 of the Indian Contract Act, that a contract where the consent of the party is not free is not a valid contract। उस free consent को हमने बस थोड़ा सा समझ लिया था एक एग्जाम्पल लेके, उसको यहाँ पे हमने डिटेल में पढ़ा with 5 factors affecting the free consent। ओके बच्चों, सो आज का क्वेश्चन आपका खत्म हुआ। इसी के साथ और एक आपका इम्पोर्टेंट बेसिक क्वेश्चन एग्जाम के लिए जो है, ये एग्जाम में लगभग बच्चों 80-90% चांस से आता है हर 2-3 साल में एक बार। सो तब तक के लिए बच्चों इसको अच्छे से पढ़ो, मैंने आपको भेज दिया, आप उसको पढ़ो, अगर डाउट है तो मुझे पूछना। क्लास के बाद आप मुझे मेल कर सकते हैं या ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। आई विल क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट क्लास। सो तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, ऑल द बेस्ट बच्चों पढ़ाई के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।